So, gentlemen, we'll be solving some problems from the exercise in which you'll be finding the Taylor series application and the Maclaurin series application. The series I have just discussed, and polynomial means few terms from the Taylor series, not all. So those few, maybe 3 terms, 4 terms, 5 terms, that is called the Taylor polynomial. Let me again define it. What is Taylor polynomial? Let f be a function with derivatives of order k, not all derivatives. These are the limit order derivatives. For k equal to 0, 1, 2, 3, up to n. Okay, this n is the last number. In some interval containing a as an interior point. Then for any integer small n from 0 to capital N, any number which is small n and is available in this interval 0 to n, the Taylor polynomial of order n generated by f at x equal to a is the polynomial. देखिए, same style is same. P and x. I mean, this is the polynomial for the n terms. F of a, f dash a, x minus a, f double dash a on 2 factorial x minus a is there. Next one will be f triple dash a, x minus a whole cube divided by 3 factorial and so on and so forth. The last term will be f of nth derivative a, x minus a power n upon n factorial. I told you this will be your last term. And maybe 3, maybe 4, maybe 5, maybe 7. It depends upon the author he is giving you the question. तो इसमें आप देखिए फिर हमारे पास डॉट 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 नहीं है आगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सीरीज इन्फिनिट नहीं है ये थोड़ी सी टर्म्स हैं जो हमने निकाली और हमें लास्ट टर्म भी निकाल के खत्म कर देना है दिस इज कॉल्ड द टेलर पॉलिनोमियल ये मैंने यहाँ पे एक नोट लिख दिया रिमेंबर 0 factorial is 1 and 1 factorial is 1 just those who do not know it they should come to know this is exercise 10.8 it is at page 630 of 13th edition book. Okay, ये आप देख लीजिएगा. In exercise 1 to 10, find the Taylor polynomials of orders 0, 1, 2, 3. बस ये 4 terms निकाल गए आप. 0, 1, 2. Generated by f at x equal to a. He has given in this question number 3 fx as log of x and a is 1. This ln is the natural log. एक होता है log, वो आपने नहीं यूज किया है जो, तो leave it. जो author दे रहा है आपको use that. ln is the natural log. Now differentiate the function 3 times. क्योंकि अब आपको देखो ना, आपको आखिरी वैल्यू क्या है 3, तो 3 टाइम्स तक आप डिफरेंशिएट कीजिए. अगर 4 होता तो 4 टाइम्स करते. x log of x is the function and at a equal to 1 इस पे आपने टेलर पॉलिनोमियल से निकालना है. तो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन 3 टाइम्स. देखिए log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. ये आपको आना चाहिए अच्छी तरह. log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, यानी यूं समझ लीजिए x की पावर -1 है यहाँ पे, तो पावर इधर आ गई, फिर पावर -1 आ गई, तो माइनस x की पावर -2 होगी, तो -2 को नीचे ले आए. फिर हो गया, ठीक है. फिर इसको ऊपर ले जाए तो -2 हो जाएगी पावर -2 और ये -+2 हो जाएगा, और x की पावर -3 होगी, वो इसको नीचे ले आए. So these are the 3 derivatives. You must know how to differentiate such functions. अगर किसी को समझ नहीं आता है, आप मुझसे बाद में शाम में फोन करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ. वो है तो बहुत आसान. log x का हमेशा 1 होता है, 1/x होता है डेरिवेटिव. log x स्क्वायर होगा तो फिर वो आपको बताऊंगा कैसे. वो आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव्स में देखिए जाता है. 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2/x क्यूब, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -6/x4. ठीक है कि नहीं? You should know. And now you evaluate all this function as well the derivatives at x equal to a equal to 1. यानी x जो है वो a है और a जो है 1 है. जी, तो आप देखो f of x, ये फंक्शन जो गिवन है, पहले यहाँ से शुरू करेंगे. f1 निकालिए. f1 का मतलब है log 1 और log 1 हमेशा 0 होता है, तो
फर्स्ट एफ एक्स इज 0, एफ डैश एक्स यहाँ से निकलेगा आपको, जहाँ डायरेक्टिव निकाला है आपको, इस पे एक्स 1 रखिए तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स निकालिए, एफ डबल डैश 1 तो -1/1 आंसर हो जाएगा -1। एफ ट्रिपल डैश एक्स में 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 2/1 की पावर 3 means 2, आंसर इज 2। So these are the values of the function and its derivative for a equal to 1. अच्छा, following are the Taylor polynomials. इनकी पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म p नॉट x वो f1 होती है, और f1 हमने क्या निकाला है, ये हमारा f1, ठीक है, f1 इज 0, तो फर्स्ट टर्म इज 0। दूसरी दूसरी जो होगी वो होगी p1x जो होगा उसमें f1 भी होगा प्लस नेक्स्ट टर्म भी आएगी f डैश 1 x माइनस, ठीक है। f1 का आंसर तो 0 अपन निकाल चुके पीछे, f डैश 1 कितना है, ये देखिए 1, और ब्रैकेट में करेंगे x माइनस 1, तो आपकी ये टर्म बचेगी x माइनस 1। ये दो टर्म्स पे मुश्तमिल है। p2 में 3 टर्म्स आएंगी, f1 आएगा, f1 डैश आएगा, फिर x माइनस 1, और उसके बाद थर्ड टर्म आएगी f डबल डैश 1 2 फैक्टोरियल x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहली 3 टर्म्स आ गई, ये टेलर सीरीज की पहली 3 टर्म्स है एट x इक्वल टू 1। वैल्यूज रख लीजिए, ये तो 0 हो गया, ये टर्म आपने ऊपर अभी निकाली हुई है ना, ये टर्म निकाली x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 आ गया। ये टर्म कैलकुलेट कीजिए, f डबल डैश 1 कितना है, डबल डैश -1, तो माइनस आ गया, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, -1/2 और x माइनस 1 प्लस, ठीक है। अब यही 3 टर्म हम लिखेंगे, तीनों टर्म्स, और एक और आ जाएगी p3 के लिए, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3। अब ये हो गया f1 फिर f डैश 1 x माइनस 1 डबल डैश ट्रिपल डैश, आखिरी वैल्यू आ गई f1 ट्रिपल डैश x माइनस 1 पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। ये वही चीज टर्म्स हैं जो आपने टेलर सीरीज में पढ़ी हैं अभी ऊपर, आपको अभी पीछे दिखाता हूँ, फिलहाल इसको कीजिए। f1 0 था, इसका आंसर आया था x माइनस 1, इसका, अच्छा ये ऐसा करें, ये दोनों लिख लें, ये है ना, ये पहली 3 टर्म्स का तो ये आंसर दिया हुआ ना ऊपर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का आंसर ये आ गया, और इसको कैलकुलेट कीजिए। अब आप आखिरी को कैलकुलेट करना है, पीछे वाली तो आपने कैलकुलेट की ऊपर वाले स्टेप्स के अंदर। f1 ट्रिपल डैश का आ गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2, वो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, और x माइनस 1 की पावर 3 वैसे ही रहेगा, तो 2, अच्छा ये 6 है ना, तो ये इसको काटेंगे, 3 बच जाएगा आपका, देखा ना, ये 3 इंटू 2 होता है ना 6, तो ये 2 से 2 कट गया, 3 बच गया, बस ये आंसर हो गया आपका। देखिए पहली 3 टर्म्स यहाँ से 1 2 3 टर्म्स का आंसर ये था ना हमारे पास, फर्स्ट 3 टर्म्स का ये आंसर लिख दिया, और आखिरी टर्म को मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, x माइनस 1 क्यूब बाई 3, दैट्स इट। देखो इसको x माइनस 1 की पावर 1 है, ये x माइनस 2, x माइनस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 है, ये हो गया x माइनस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, that's it। हाँ, एक और करा देता हूँ, क्योंकि एक दफा हमें समझ नहीं आएगा। देखो टेलर सीरीज को आप रट लें पहले, ये है टेलर सीरीज, क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो क्या है, एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए। ए की जो भी वैल्यू, अगर 1 है तो 1 रखते जाओ, 3 है तो 3 रखते जाओ, ठीक है। दिस इज योर टेलर सीरीज, और अगर यहाँ पे आपने ए को 0 रख दिया तो दैट विल बी योर मैक्लॉरेन सीरीज, दैट्स इट। आई एम डूइंग वन मोर प्रॉब्लम so that you could grip over it. Doing this question number 7, fx is equal to sin x and a is pi by 4। वही आपने 3 पॉलिनोमियल्स करनी है, p0 p1 p2 and p3, you have to calculate, so you need to find 3 derivatives। fx is given to you, that is sin x, ये दिया हुआ है ना, given लिखो fx equal to sin x, differentiate कर f dash x,
साइन का cos x हो जाता है। डबल डेरिवेटिव लोगे cos का माइनस साइन x हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव लोगे माइनस अपनी जगह साइन का cos x हो जाएगा। ओके, and now you calculate the function and its derivative at a equal to pi by, यानी x की जगह आप लगाएंगे pi by, तो f of a क्या बन जाएगा, f of pi by 4, यहाँ पे pi by 4 रखोगे तो sin pi by 4 यानी sin 45 1 by under root 2। इसको उसने इस तरह से लिखा है, ऊपर नीचे अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 से, न्यूमरेटर विल बिकम अंडर रूट 2 एंड डिनोमिनेटर में 2 आ गया। ओके, अब आइए इसी तरह एफ डैश में रखें, एफ डैश ए की वैल्यू आपके पास है पाई बाई 4, ये हो जाएगा एफ ऑफ डैश पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 बनेगा, कॉस पाई बाई 4 होता है वही अंडर 1 ओवर अंडर रूट 2, जैसे साइन की वैल्यू है वही कॉस पाई बाई 4, बोथ आर इक्वल, ये भी वही आंसर आएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप नोट करते जाइए, अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर आप मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा अगर कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा। तो 3-4 डेरिवेटिव्स निकाल लें, उनमें आपने पॉइंट पुट करना है और सबको उठा के टेलर पॉलिनोमियल में या टेलर सीरीज में पुट कर देना है। वैसे जी एफ डबल डैश में पुट करेंगे पाई बाई 4, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 4 माइनस में साइन पाई बाई 4 माइनस लग जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाई 4, तो ये भी कॉस पाई बाई 4 वही होता है सेम।